तो देख सकते हैं काफ़ी प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे हैं। कौन सी क्लास में आप लोग? 10th। देख सकते इतनी छोटी से बच्चे दिख रहे हो आप, तो 10th में आप लोग। तो आप क्या करने वाले हो आप लोग? टैबलो। ये आपकी फ्रेंड्स लोग हैं क्या सब जो ड्रेस में है? अच्छा, क्या करने वाले हो? तो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय जाफरी एजे इज बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। तो हम आए आज रशीदिया बोलो चाहे उसको उम्मे सलमा बोलो, उसके बहुत सारे नाम हैं। तो हम वहाँ का आए फंक्शन शूट करने। मेरे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन फट से मिलेगा। जाफरी/AJ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप जाके उस पर फॉलो कीजिए मुझे, क्योंकि सबसे पहली अपडेट वहीं पर आपको मिलेगी। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए लेके चलते हैं आपको वीडियो देखने में। लेट्स गो। रशीदिया संस्था की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत बिजी शेड्यूल में सबक निकाल के यहाँ इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए जाते वक्त। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.
and wanna hate this, I'll always show up. प्रोग्राम का मजा लेने वाले सबसे पहले मैं बच्चों की तारीफ करूँगा, उनके लिए तालियां हो। अजीत सर शुक्रिया आपका। अरे बहुत सी स्कूलों में ऑल ओवर इंडिया घूमता हूँ, मैं जाता हूँ, बहुत सी स्कूलों में प्रोग्राम जब होते हैं, जब समय हो जाता है तो बच्चों का बैठना मुश्किल हो जाता है, इधर उधर घूमना फिरना चालू हो जाता है, लेकिन यहाँ का एक डिसिप्लिन देता है, वो उसके लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद अम्मी लोग ज़्यादा है, अब्बू लोग कम है ना। ये परेशानी सभी जगहों की है। जहाँ भी मोटिवेशन को मैं जाता हूँ, पेरेंट्स के, टीचर्स के या बच्चों के, जहाँ पेरेंट का नाम आया तो सिर्फ अम्मी दिखती है, अब्बू दिखते ही नहीं है, बिजी शेड्यूल चलता है उनका। और टीचर्स लोग वो मेरा तारीफ में बहुत कुछ कह गया मेरे छोटे भाई, और वो बचपन से जानते हैं, इसलिए उन्होंने इतना सारा लिख लिया मेरे बारे में, शुक्रिया। मैं प्राइमरी टीचर हूँ और मराठी स्कूल को पढ़ाता हूँ, और मेरा गांव, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ यहाँ से नियर अबाउट 150 यानी 150 किलोमीटर दूर है, गढ़चिरौली भंडारा बॉर्डर पे नक्सलाइट एरिया है, छोटा सा गाँव, और पॉपुलेशन गांव का है ओनली 700। लेकिन आज उस गांव के, और गांव में रहते कौन है, टोटली फार्म वर्कर्स है, लेबर वर्कर्स है, कोई पैसे वाला इंसान वहां रुका नहीं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए वो गांव छोड़ के चले गए। मैं वो गांव में गया 15 साल पहले, तो 15 साल से वो गांव में एक कोशिश किया मैंने कि क्यों ऐसे गांव की देहात की स्कूल के ऊपर लोग यकीन नहीं करते, कहाँ हम कम है। एक्चुअली मैं तो वैसे एक्सीडेंटल टीचर हूँ, मैं टीचर नहीं बनना चाहता था, पर मेरे अब्बू की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं टीचर बनूँ, शायद उस वजह से इस फील्ड में आ गया। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ उस समय मैं PSI के लिए ट्राई कर रहा था, नासिक में केल कवर के क्लासेस चलते थे, वहाँ मैंने ट्राई करा था, लेकिन माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से मैं वो कर नहीं पाया। तो मेरे अब्बू ने कहा कि बेटा DED कर ले और कोशिश कर, 1-2 साल नौकरी कर, उसके बाद कुछ पैसा आ जाए पढ़ाई कर, तो बाद में कोशिश करना। वो कोशिश के साथ में वो 1-2 साल की नौकरी करने उस गाँव में गए, लेकिन जब मैं बच्चों के सामने पेश हुआ, अपने आप को एक टीचर के रूप में उनके सामने जब खड़ा किया, उनसे बात किया, तो मुझे लगा कि इनकी आंखों में दुनिया देखने का और मैं दिखा सकता हूँ। और उस दिखाने के लिए, उस चीज के लिए मैंने फिर बहुत सोचा कि मैं सिलेक्टेड हूँ, मैं बहुत सारी एग्जाम देके आया हूँ, अच्छा क्वालिफिकेशन है, फिर भी मैं इस गांव में आने के बाद देख रहा हूँ तो स्कूल में बच्चे कितने कम हैं, और बहुत से गांव के बच्चे कॉन्वेंट्स पढ़ने के लिए, इंग्लिश स्कूलों के लिए बाहर जा रहे हैं। ऐसा क्यों, ये यकीन क्यों नहीं कर रहे मुझ पे? तो मैंने पहले खुद को देखा। तो मैं हर समय टीचर को कहूँगा, यहाँ बहुत सारे टीचर है, शुरुआत जो करनी है ना, स्टार्ट करना है ना, खुद से करना है। हम कैसा होता है, बहुत सारी बार हम तकलीफों को पेश करते हुए दूसरों की उंगलियां दिखाते हैं, वो देखो ऐसा है, पेरेंट्स ऐसे है, बच्चे ऐसे, फिर वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, फिर उनकी सोच ऐसी है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ये करते में समय निकल जाता है। मैंने वो नहीं किया। मैंने सोचा मैं कुछ कम हूँ, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, मुझे कुछ नया करना चाहिए, तो कोशिश के साथ मैंने वहाँ पे शुरुआत की। मैं अभी भी आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं स्कूल में गया, इतनी कंडीशन स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल आप समझ सकते हो, बच्चों ध्यान देकर सुनो, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, वहाँ के बच्चों की आज लाइफस्टाइल क्या है, वहाँ के बच्चे आज क्या कर रहे हैं। जब आपको जिस समय मैं बताऊंगा ना, तब आप सोचोगे कि ये मिरेकल कैसा हो गया। और वो करने वाले कौन है? कोई नहीं, वो गांव के गरीब माँ बाप है, हम कुछ टीचर है, और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे। हमने तीनों ने मिलकर वो कोशिश की। आज वो गाँव के बच्चे कौन से कंडीशंस में, मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत में जब मैं क्लास में गया, मैं ज्वाइन हुआ तो बारिश के दिन थे और जोरदार बारिश हुई। सेकंड डे था मेरा, जोरदार बारिश हुई। तो वहाँ के प्रिंसिपल जो थे, एक बुजुर्ग इंसान थे और रिटायरमेंट के स्टेज पे थे। हालांकि ये बहुत बुरी बात है, बुजुर्ग होने के बाद साथ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ते हुए चलते जाते हैं। अरे क्या 2 साल रहेंगे, अब क्या करूँ, मुझे वो बात ठीक नहीं लगती। मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं टीचर बना हूँ, तो बनते तब तक मैं टीचर रहना चाहिए। और शायद मैं रिटायर भी हो गया, मेरी जरूरत आज भी सोसाइटी को है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीम देता हूँ, मैं अच्छाई के रास्ते पे बच्चों को चलाने की सीख देता हूँ। तो मेरी वो जो चीज़ है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। पर होता है, वो प्रिंसिपल मेरे को बोले, सर बारिश हो गई, बच्चों को छुट्टी दे दो। बोला ऐसे कैसे? बोले देखो कितना सारा पानी गिर रहा है ऊपर से, कुछ कब्जा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जाने तो बोले बच्चों को छुट्टी देने के पहले बच्चे भागे, क्योंकि उनको आदत थी। बारिश आई तो बहुत सेलिब्रेट करते थे कि छुट्टी होना है, तो भागना है। ऐसे कंडीशन के स्कूल में जब मैंने कदम रखा,
बहुत सारी कठिनाइयां सामने थी, लेकिन उसको सबको झेलते हुए वहाँ की कम्युनिटी को साथ में लेके उनमें एक यकीन पैदा किया। आज कंडीशन में इन्होंने तारीफ किया कि वो स्कूल को देखने नियर अबाउट 5 लाख लोग आपको महाराष्ट्र नहीं, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जापान से स्कूल को देखते हैं। क्यों? तो वहाँ का जो है पॉलिसी जो मैंने बनाया बच्चों के अंदर, उन्होंने कहा एमपीएससी यूपीएससी की आधी प्रिपरेशन मेरे 5वीं तक के बच्चों की वहाँ पे हो गई। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, मैं स्कूल का नाम बाद में बताऊंगा, वेबसाइट पे भी वो स्कूल है। और वहाँ के बच्चों ने मिरेकल करके दिखाया कि हम अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले टारगेट करूंगा बच्चों को, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी किस्मत। और एक सच्ची बात कर रहा हूँ, आप उर्दू स्कूल में पढ़ते हो, चलो मीडियम कोई भी हो, इल्म आना चाहिए, लेकिन एक चीज देखो, जो लैंग्वेज में तुम घर में बात करते हो, जो लैंग्वेज में तुमको जल्दी समझ आता है, वो लैंग्वेज में अगर तुम कोई चीज की पढ़ाई करोगे, आप जल्दी उसमें आगे बढ़ोगे। ये सच्चाई है। बुजुर्ग हो जाएंगे, हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनका नाम हो, वो अपने कदमों में खड़े हो, वो कुछ मेहनत करे, उनके नाम से हमें नवाजा जाए कि किसका बेटा है, ये पूछा जाए। इन चीजों के लिए माँ बाप हर समय कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इतना सोचने से नहीं होगा, उसको हमारे को उसके अंदर खुद को डालना पड़ेगा। मैं सबको दुनिया को एक बताते फिरता हूँ, घूमता हूँ, मुझे जापान बुलाया गया, मुझे स्विट्जरलैंड, अभी फिनलैंड को सबसे बड़ा वर्ल्ड में जब एजुकेशन में पॉलिसी में सबसे बड़ा अगर कंट्री होगा तो फिनलैंड है दुनिया का। सब वहाँ के लोग आए थे मेरे स्कूल में, कहाँ से उन्होंने गूगल से सर्च किया पता नहीं, तो मेरे स्कूल का नाम है जिला परिषद प्राइमरी स्कूल खराशी इन लॉकनी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट भंडारा, इन नक्सलाइट एरिया, छोटा सा गाँव। आप उसका नाम लिख के रखो और बाद में प्रोग्राम के बाद आप यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ या वेबसाइट पे उसका मिल जाएगा, उसको सर्च करो, वहाँ की पूरी एक्टिविटीज आपके ध्यान में आ जाएगी। तो वो जो आज के इस प्रोग्राम में मुझे ये अजीम सादत मिली है कि मैं आप सभी को खिताब कर सकूं, और इस प्रोग्राम में यौम फ़क़ीह आज़म हिंद जो जामिया अरेबिया ट्रस्ट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं सभी को दाद देती हूँ इस बेहतरीन प्रोग्राम के लिए। सारे ऑर्गेनाइजर्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, मुबारकबाद देना चाहूँगी, साथ ही सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो यहाँ मौजूद हैं, जो मैं मानती हूँ आज की इस महफिल की रूह है। मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, आप सभी को मुबारकबाद देती हूँ। और बाबर सर ने मेरा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिए हैं, और वो उन्होंने आपसे बताया है कि बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन एक कम्युनिकेशन कोच हूँ। मैं दुनिया भर के स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को ट्रेन करती हूँ इंग्लिश में, पब्लिक स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। और मेरे पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस में एक चीज़ जो आप सभी से शेयर करना चाहूँगी, यहाँ पे आप सब जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, टीचर्स हैं, कि आज के इस समय में, इस दौर में अगर एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी कला है, एक ऐसा स्किल सेट है जो आपको किसी भी फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, किसी भी महफिल में आप जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको आउटस्टैंडिंग बनाए, आपको अजीम बनाए, वो है आपका कॉन्फिडेंस। आप खुद को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपका जज्बा, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। और एक चीज़ जो आपको करनी है आपकी पूरी स्कूल लाइफ में, सभी टीचर्स यहाँ बैठे हैं, हमारे पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक चीज़ जिस पे हम काम कर सकते हैं बच्चों पे, वो है उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, उनका हौसला अफजाई हमें करना है, उनका कॉन्फिडेंस मजबूत बनाना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च ऐसा कहती है कि अगर एक बच्चे की हम जिंदगी को देखें, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे का जो विंडो रहता है, इस दौरान एक बच्चे को लगभग 45 पॉजिटिव कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, अच्छी बातें सुनने को मिलती है। हम तारीफ करते हैं बच्चे की डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन एट द सेम टाइम उसी बच्चे की दिन भर में हम कम से कम 400 बार उस बच्चे को हम नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, यानी आपसे ये हो नहीं सकता है, या आपके बस की बात नहीं है। हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में बच्चे को, वहाँ पे हम बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगाने लगता है सिर्फ हमारी बातों से। तो सबसे पहली चीज़ जिस पे हमें काम करना है और हमें कोशिश करनी है कि हम सिर्फ हमारी स्कूल का ही नाम रोशन ना करें, हम आगे बढ़ के हमारे देश का नाम रोशन करें। हमें शुरुआत किस चीज़ से करनी है? हमें शुरुआत इस बात से करनी है कि हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें सिर्फ 2 चीज़ों पे काम करना है।
जिन्होंने 85.80% हासिल किया है नेशनल उर्दू हाई स्कूल से। पास करता हूँ कि जनाब सादिक काजी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ तो अपने दस्ते मुबारक से इनकी हौसला अफजाई करें, इनाम से नवाजे। I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I 1990 में हमारा तकर्रुर हुआ था और आपने अपने तमाम फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दिया और आपकी बेहतरीन कारकर्दगी को नज़र में रखते हुए इंतज़ामिया ने कई मरतबा आपको अवार्ड से नवाजा है और आपका इस साल सन जुलाई 2024 में अपने फर्स्ट साल सुरदोश हुए हैं और मैं उनको इस इंतज़ामिया की जानिब से इस वर्ष की सुरदोशी के नज़र में रखते हुए आपको अवार्ड देना चाहता हूँ। do, so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past.
लास्ट फोटोशूट चालू है टीचर्स का। अरे आप लोग खाना नहीं खा रहे हो? नहीं, भूख नहीं लगती आप लोगों को? खाना खाने जा रही है ना, तो देखो वहाँ लग चुका है खाना। जी चलते हैं इंशाल्लाह।